ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر 6 سال تھی اور نام تھا شہزادہ شامی۔ شہزادہ شامی اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر دوسرے بچوں کی طرح اس کی بھی باپ سے محبت صرف دن دن کی ہوا کرتی تھی۔ رات کو وہ اپنی ماں ملکہ حسن بانو کے پیچھے لگ جاتا، وہ اسے کھانا کھلاتی، پھر اپنے پاس سولا کر کہانی سناتی۔ کہانی سنتے سنتے ہی وہ سو جایا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کو کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو شہزادہ شامی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت تھی، اس کی ضد دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر ملکہ حسن بانو نے ہنس کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں شہزادے کو بھلا لوں گی۔ ہمارا شہزادہ ضد تھوڑا ہی کرتا ہے، ضد تو گندے بچے کرتے ہیں۔ امی حضور، ہم ضد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابا حضور کے ساتھ جانے کو کہہ رہے ہیں۔ شہزادہ شامی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن شہزادے اگر آپ چلے گئے تو پھر آپ کی پڑھائی لکھائی کا کیا ہوگا؟ آپ کے استاد پوچھیں گے نہیں کہ شہزادے صاحب کہاں چلے گئے؟ ملکہ نے کہا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارے استاد کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم وہاں پڑھ لکھ بھی لیا کریں گے، اس طرح ہماری تعلیم کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، لیکن شہزادے یہ بھی تو دیکھیے، آپ کے ابا حضور بھی چلے جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میں یہاں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ پھر جشن بہاروں کا میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دفعہ ہمارے ملک میں خدا کے فضل سے فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اس خوشی میں پورے ملک کے کسان اس میلے میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ طرح طرح کے کھیل تماشے ہوں گے، جانوروں کی نمائش ہوگی، بڑے بڑے جھولے لگے ہوں گے، نٹ مزے مزے کا کرتب دکھا رہے ہوں گے، گھوڑوں اور اونٹوں کا ناچ ہوگا، جو ڈھول تاشوں کی آواز پر رقص کر رہے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ شہزادہ شامی کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ بھی رقص کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، آپ سفر پر روانہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی حضور محل میں اکیلی ہوں گی، رات کو اگر کوئی بھوت یا چڑیل آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے پاس ہی رہیں گے۔ شہزادے شامی کا یہ معصوم سا بہانہ سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میلے کے متعلق باتیں سن کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اس نے کہا، بیٹے، جب تم میلہ دیکھنے جاؤ تو اپنی امی حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، وہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کہیں کھو مت جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد ملکہ شہزادے کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے گئی۔ یہ میلہ مسلسل 1 ماہ تک لگتا تھا۔ وہ اور شہزادہ ایک بگی میں سوار تھے اور بہت سے سپاہی ان کے ہمراہ تھے۔ میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگا تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے خوانچہ فروش ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ رنگ برنگے گھاگرے پہنی عورتیں لکڑی اور مٹی کے کھلونے بیچ رہی تھیں۔ میلے میں یہ چہل پہل دیکھ کر شہزادہ شامی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ملکہ کے کان میں کہا، اچھا ہوا ہم ابا حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکرانے لگی۔ ایک جگہ شہزادے نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے ڈھول بجاتے دیکھا۔ یہ منظر اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کھڑکی میں سے سر نکال کر بگی بان سے کہا کہ وہ بگی روک دے۔ پھر وہ دلچسپی سے ڈھول بجانے والوں کو دیکھنے لگا۔ ان ڈھولوں کو انہوں نے گلے سے لٹکا رکھا تھا اور لکڑی کی موٹی موٹی چھڑیوں سے زور زور سے بجا رہے تھے۔ ڈھول بجانے والوں نے زرد رنگ کے لباس پہنے تھے اور سر پر سرخ رنگ کے صافے باندھے ہوئے تھے۔ شہزادے نے اپنی زندگی میں ڈھول پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بگی چلانے والے سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے اور اس میں سے اتنی تیز آواز کیوں آ رہی ہے؟ شہزادے کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، شہزادے صاحب، اس کا نام ڈھول ہے اور لوگ اسے خوشیوں کے موقعوں پر بجاتے ہیں۔ انہیں شیشم کی لکڑی اور بھینس کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور انہیں بانس کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات شہزادہ شامی کے لیے بالکل نئی تھیں۔ اس نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے سنا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ محل لوٹے۔ شہزادہ شامی کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، ہمیں ایک بڑا سا ڈھول چاہیے، ہم اسے بجائیں گے ویسے ہی جیسے وہ لوگ بجا رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، شہزادے جانی، ہم آپ کو ڈھول نہیں دلائیں گے،
आप एक शहजादे हैं। शहजादे ढोल नहीं बजाते। ये भी तो सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, एक शहजादा ढोल बजा रहा है। हम लोगों को मना कर देंगे कि वो ऐसा न सोचें, बस सुबह आप हमें एक ढोल मंगवा कर दे दीजिएगा। शहजादे ने फैसला किन लहजे में कहा और थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह मलिका तो उस बात को भूल भी चुकी थी, मगर शहजादे ने उठते के साथ ही उसके बारे में पूछा। मलिका उसकी जिद से तंग आ गई थी, उसने इसे डांट दिया। डांट सुनकर शहजादा रोने लगा। मलिका ने कहा, कल आपके अब्बा हुजूर तशरीफ ले आएंगे, हम उनसे आपकी शिकायत करेंगे। आप कैसे बचे हैं कि अपने शौक की खातिर माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। मलिका के सख्त जुमले सुनकर शहजादा खामोश तो हो गया, मगर दोपहर तक इसे तेज बुखार हो गया। उस पर नियम बेहोशी तारी हो गई थी। अदर वो गनूदगी में भी बड़बड़ा रहा था, मुझे ढोल चाहिए, मैं ढोल बजाऊंगा। उसकी हालत देखकर मलिका घबरा गई और महल के तबीबों को तलब कर लिया। उन्होंने शहजादे का मुआयना किया। उनमें से एक तबीब ने मलिका से कहा कि शहजादे साहब जिद में आए हुए हैं और किसी बात को जहन पर सवार कर लिया है। ऐसे हालात में दुआएं असर नहीं करती। शहजादे का बुखार इसी वक्त उतरेगा जब उनकी जिद पूरी कर दी जाएगी। ये कर तबीब तो चले गए, मगर मलिका परेशान हो गई। सारी रात उस परेशानी में गुजर गई। शहजादे का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह ही सुबह कनीज़ों और गुलामों का शोर व गौगा मचा। बादशाह सलामत तशरीफ ले आए हैं। मुबारक हो, सलामत हो। मलिका दौड़कर खिड़की के नज़दीक गई। बादशाह महल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। वो सीधा मलिका के पास आया। उसने मलिका का परेशान चेहरा देखा तो खुद भी परेशान हो गया। मलिका आलिया, क्या बात है, आप कुछ परेशान सी नजर आती हैं। मलिका ने जल्दी जल्दी इसे शहजादे की जिद के बारे में बताया और बोली, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। न कभी सुना न कभी देखा कि एक शहजादा ढोल बजा रहा है। शहजादे ने तो अजीब जिद लगा ली है। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और शहजादे के पास बैठते हुए बोला, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। मलिका, आप इतनी सी बात से परेशान हो गई हैं। शहजादा बचा है। बच्चे तो जिद करते ही हैं। आपने कभी हमें जिद करते हुए देखा है? हम भी बचपन में बहुत जिद्दी थे, मगर बड़े होकर ठीक हो गए हैं। बड़े होकर सब ठीक हो जाते हैं। शहजादे को तेज बुखार था और वो नियम बेहोश सा था। बादशाह ने इसे गोद में उठाया और आवाज दी। बादशाह की आवाज सुनकर शहजादे ने आंखें खोल दी। बाप को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने बादशाह के गले में बांहें डाल दी। बादशाह ने इसे बस्तर पर बैठाया और फिर ताली बजाई। कमरे के दरवाजे पर मौजूद दरबान अंदर आया। हमारे सामान में एक खूबसूरत चमड़े का संदूक है, इसे पेश किया जाए, बादशाह ने दरबान से कहा। दरबान ने कहा, अभी हाजिर किया जाता है हुजूर, बादशाह सलामत। ये कर वो चला गया। थोड़ी देर में एक गुलाम वो ही संदूक लेकर हाजिर हो गया और दीवार के साथ रखी लकड़ी की मेज पर रखकर रखसत हो गया। शहजादे, हमें अफसोस है कि आप बीमार हो गए हैं, मगर हम आपके लिए जो चीज़ें लेकर आए हैं उन्हें देखकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बादशाह की बात सुनकर शहजादा झट से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। मलिका इसे खुश देखकर खुद भी खुश हो गई और कहने लगी, देखिए शहजादे, आपके अब्बा हुजूर आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। चलिए अब हमसे वादा करें कि उसके बाद ढोल की जिद नहीं करेंगे। ढोल का नाम सुनकर शहजादे को फिर सब कुछ याद आ गया। वादा तो वो किया करता। उसने कौटकी वाली अंगली मलिका को दिखाई और दूसरी तरफ घूमकर घुटनों में मुंह देकर बैठ गया। उसकी उस हरकत पर मलिका चढ़ गई, जलकर बोली, ठीक है, आपके अब्बा हुजूर तशरीफ ले आए हैं, खुद ही निमट लेंगे। बादशाह मुस्कुराते हुए उठा। शहजादे को एहसास हो गया कि बादशाह बस्तर से उठ गया है। बादशाह मेज पर रखे संदूक की जानिब जा रहा था। शहजादा दिल में सोचने लगा, जाने अब्बा हुजूर मेरे लिए क्या लाए हैं। अचानक थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज गूंजी, झमझमा झमझम। उसने चौंक कर पीछे घूम कर देखा तो क्या देखता है, बादशाह के हाथों में एक बड़ा सा ढोल है और उसमें एक पिटी भी मौजूद है ताकि इसे गले में लटका लिया जाए। शहजादा जल्दी से बस्तर से छलांग मार कर नीचे उतरा और बादशाह के पास पहुंच गया। मारे खुशी के उसका बुरा हाल था। मलिका हैरान रह गई थी। बादशाह उसकी हैरानी से लुत्फानंदोज हो रहा था। प्यारी मलिका, अभी तो आप मजीद हैरान होंगी, उस संदूक में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं। शहजादे ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा, अब्बा हुजूर आप कितने अच्छे हैं। शहजादे को जितनी जल्दी बुखार चढ़ा था,
ढोल को देखकर इतनी ही जल्दी उतर भी गया था। बादशाह ने मलिका से कहा, हम जब अपने दोस्त के मुल्क में पहुंचे तो वहां भी जश्न बहार मनाया जा रहा था। उनका भी बेटा हमारे शहजादे जितना है। अपने बेटे को उन्होंने एक किसान का स्वांग भरवाया जिसकी फसल बहुत अच्छी होती है और वो उस खुशी का इजहार ढोल बजाकर करता है। ये तमाशा हमने अपने दोस्त बादशाह और उनकी मलिका के साथ देखा था और हमें इतना पसंद आया कि हमने भी फैसला कर लिया कि अपने शहजादे को किसान बनाकर उस मेले में खुद भी शिरकत करेंगे। हमारे उस फैसले से हमारे दोस्त बादशाह भी बहुत खुश थे। उन्होंने ये ढोल और शहजादे के रंग बिरंगे कपड़े हमें तोहफे में दिए हैं। उन्होंने हमें एक बड़े काम की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि हम हर साल जश्न बहार के मौके पर अपनी राया में उन्हीं की तरह का कोई भी बदल कर उनकी खुशियों में शिरकत करते हैं। कभी मजदूर बन गए, कभी ताजिर, कभी फल बेचने वाला, कभी धोबी, कभी हजाम और कभी गली महलों में झाड़ू लगाने वाला खाकरूब। हमारी उन बातों से वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका बादशाह उनकी खुशियों में भरपूर तरीके से शिरकत करता है और कोई सा भी रूप धार कर उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता। मलिका हैरानी से बादशाह की बातें सुन रही थी। बादशाह खामोश हुआ तो वो बोली, हम तो नाहक शहजादे की फरमाइश सुनकर परेशान हो गए थे कि जब वो ढोल बजाएगा तो लोग क्या कहेंगे। हमें अफसोस है कि हमारी वजह से हमारा शहजादा बीमार पड़ गया था। वाकई अपनी राया के साथ घल मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बादशाह ने शहजादे को वो कपड़े दिखाए जो उसके दोस्त बादशाह ने उसके लिए दिए थे। उन कपड़ों में सफ़ेद पाजामा, पीले रंग का कुर्ता, गुलाबी रंग की वास्कट और हल्के नीले रंग का साफा था। पाँव में पहनने के लिए सुनहरी कामदारी उकसे थे। उन चीज़ों को देखकर शहजादा तो बहुत ही खुश हुआ। बादशाह ने इसी वक्त अपने वजीर को बुलाकर इसे हदायत की कि वो कल मेले में एक पिंडाल का इंतजाम करवा दे क्योंकि वो मलिका और शहजादे के साथ मेले में शिरकत करेगा। अगले रोज सब मेले में पहुंचे। शहजादा किसान के रूप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बादशाह ने इसे बगी के अंदर ही छुपाया हुआ था। मेले में पहुंचकर जब सब अपनी अपनी जगह बैठ गए तो वजीर ने ऐलान किया कि अब उनके सामने एक ऐसे किसान को पेश किया जाएगा जिसकी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं और वो खुशी से निहाल है। उस ऐलान का बाद शहजादा शामी बगी में से निकला। शहजादे को खुश देखकर बादशाह और मलिका भी बहुत खुश थे। मेले में शिरकत करने वालों की भी खुशियां दोबारा हो गई थीं। दोपहर हुई तो बादशाह ने वापसी की ठानी। अभी वो लोग वहां से रवाना नहीं हुए थे कि शहजादे ने एक नौजवान को देखा। उसके पास घोड़े का एक बहुत छोटा से खूबसूरत बच्चा था। शहजादा उस घोड़े के बच्चे को देखते का देखता रह गया। वो था ही इतना खूबसूरत। वो नौजवान शहजादे के पास आया और बोला, शहजादे साहब, मेरे पास कितना खूबसूरत घोड़े का बच्चा है। अगर आप अपना ढोल मुझे दे दें तो मैं उसके बदले में ये घोड़े का बच्चा आपको दे दूंगा। सच्ची बात यह थी कि शहजादा ढोल बजा बजा कर थक गया था। उसको गले में लटकाए लटकाए उसकी गर्दन में भी दर्द हो गया था। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके कान अभी तक साएं साएं कर रहे थे। इसे ढोल में एकदम कई बुराइयां नजर आने लगीं और चमकदार आंखों वाला घोड़े का बच्चा अच्छा लगने लगा। उसने मलिका से कहा, अम्मी हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं अपना ढोल देकर घोड़े का ये प्यारा सा बच्चा ले लूं। मलिका ने फौरन इजाज़त दे दी। शहजादे ने ढोल देकर घोड़े का बच्चा लिया और खुशी खुशी महल आ गया। महल पहुंचकर वो उसको लेकर बाग में पहुंचा और उसके साथ खेलने लगा। घोड़े का बच्चा भी इतनी सी देर में उससे मानूस हो गया था। मलिका मुस्कुराते हुए बोली, शहजादे के उस शौक से मैं तो परेशान हो गई थी। खुदा का शुक्र है कि आपकी अक्लमंदी काम आ गई। बादशाह ने कहा, मलिका, इतनी उम्र के बच्चे अजीब अजीब जिद्दी करते हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो उस मामले में सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहिरा करें। ऐसे मामलात में गुस्सा करना और बच्चों पर सख्ती करना मुनासिब नहीं। देखा नहीं उस जरा सी बात की वजह से शहजादे ने अपने जहन पर कितना असर ले लिया था और बीमार पड़ गए थे। बात हालांकि मामूली थी। मलिका शर्मसारी से बोली, गलती मेरी थी। अगर मैं नरमी से काम लेती तो शहजादा जिद में आकर बीमार भी नहीं होता। बच्चों की जिदें अगर बेज़र तो उन्हें मानने में कोई हर्ज नहीं। इसी वक्त उनके कानों में शहजादे के हंसने की आवाज़ आई। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, शहजादा उस कोने से उस कोने तक घोड़े के बच्चे से दौड़ का मुकाबला कर रहा था। घोड़े का बच्चा हालांकि तेज भाग रहा था मगर शहजादा शामी के भागने की रफ्तार ज्यादा थी और वो जीत गया था। ये मंजर देखकर बादशाह और मलिका भी मुस्कुराने लगे।